এই অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে সেন্ট্রাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি। Central Sanskrit University, Ekalavya Campus, Agartala, Lembuchera, Tripura. About the campus, Central Sanskrit University is a multi-campus Sanskrit university. It is purely a central university. It has a total number of 13 campuses all over India. Ekalavya Campus, Agartala, is one of the 13 campuses and one of its kinds in the entire Northeast. Presently, this campus is running its academic and administrative wings at its own campus premise at Lembuchera, Tripura. This campus is functioning here since 4th June 2013. Details of courses. Courses: Prakshastri 11th and 12th, duration 2 years. Major subjects: Vyakarna Sanskrit Grammar, Sahitya Sanskrit Literature, Jyotish Astrology, Advaita Vedanta Philosophy, Buddha Darshan Buddhist Philosophy, Dharmashastra Veda and Porohitya Karmakanda. Elective optional subjects at Prakshastri and Shastri level: English, Computer Education, Political Science and Hindi or Bengali. Courses: Shastri BA, duration 3 years. Courses: Shastri Pratishta BA Honours, duration 4 years. Courses: Acharya MA, duration 2 years. Courses: Vidya Bharati PhD, duration as mandated by UGC. Courses: Shiksha Shastri B.Ed, duration 2 years. Major subjects as per NCTE norms. Courses: BCA, duration 3 years. Courses: Postgraduate Diploma, duration 1 year. Major subjects: Yoga, Library and Information Science, Porohitya Karmakanda. Facilities: monthly scholarship for meritorious students, boys hostel, girls hostel, gym cum yoga center, language lab internet enabled, psychology lab, ICT computer lab internet enabled, smart classroom, NSS, personality development through participation in various kinds of national level events conducted by university in various states of India. Central Library, coaching classes for UGC, NET, SET, CTET, etc. Canteen. For more information, visit www.csuagartala.edu.in. नमस्कार, हमारे सारे दर्शक बंधु को आज स्वागत करते हैं आज के मुख्य कार्यक्रम पे। आज विश्व संस्कृत दिवस है। इस दिवस पर आप सभी को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के इस विशेष दिन पर। आप सभी को जान के बहुत अच्छा लगेगा, संस्कृत भाषा सर्वाशम भाषणम जननी, संस्कृत सर्वत्र पूज्यते। संस्कृत भाषा हर भाषा का जननी है, इस भाषा को हमारी माँ कहलाती है। चलिए आज इस भाषा के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कार्यक्रम करेंगे आज के इस विशेष दिन पर। आज के इस पावन अवसर पर हमारे स्टूडियो पे जो जुड़े हैं, चलिए एक बार परिचित होते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं इस पावन अवसर पर। 2 शब्द आपके मुंह से। अद्य विश्व संस्कृत दिवसः। अत्र उपस्थितानाम् अतिथिनां कृते एवं च सभी दर्शकानां कृते, सर्वे दर्शकानां कृते अपि अभिनंदनानि। बहुत बढ़िया सर। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम पे और एक मुख्य अतिथि है, हमारे साथ है प्रोफेसर सत्यदेव पोद्दार, वाइस चांसलर एमबीवी यूनिवर्सिटी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम पे और संस्कृत दिवस का बहुत बहुत बधाई। सर, 2 शब्द आपके मुंह से। धन्यवाद मैडम। आज हर भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत का आज विश्व संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर निश्चित रूपेण हम संस्कृत को आम जनता की भाषा बनाएंगे और उसी के क्रम में आज का दिवस की यह जो पूरे कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा आज खींची गई है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम पर मुझे आने का मौका मिला। बहुत बढ़िया सर, हम बहुत कुछ सुनेंगे आज आपके मुंह से। हमारे साथ आज और भी एक मुख्य अतिथि है, हमारे साथ है श्री दीपंकर रॉय, प्रिंसिपाल ऑफ केंद्रीय विद्यालय कुंजवन आगरतला। नमस्कार স্যার, আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত এবং সংস্কৃত দিবসের, বিশ্ব সংস্কৃত দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। কেমন লাগছে দুটো কথা শুনতে? অনেক ধন্যবাদ। প্রথমেই সবাইকে জানাই আজকের বিশ্ব সংস্কৃত দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অনেক ধন্যবাদ। আর আজকে আমি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কুঞ্জবন, যেটা আগরতলার একটা অনেক
পুরনো স্কুলের মতো একটা, ওই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় পুঞ্জবনের আমি প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি খুবই খুশি। আর সংস্কৃতের বিষয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। আমি একটা কথা বলতে চাই যে সংস্কৃত ভাষা শুধু একটা ভাষা নয়, এটা একটা ট্র্যাডিশন, এটা একটা আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। আর আমরা সবাই সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা সবসময় জড়িত। এটা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি, অনেক সময় বুঝতে পারি না, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে সংস্কৃত ভাষা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব অনেকটাই পরিপূর্ণ নয়। আর এটা আমাদের একটা অস্মিতার মিনিং হলো সম্মান। ভারতবর্ষের সম্মান বা অস্মিতা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এই ব্যাপারে আমরা আমাদের যারা বিদ্বানজন আছেন ওদের থেকে আমরা অনেক কিছু শুনবো, অনেক আলোচনা করব। बहुत बढ़िया। আবার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। दीपंकर सर, थैंक यू। तो दर्शक बंधु, आज हम बहुत कुछ संस्कृत के बारे में जानेंगे, सुनेंगे। हमारे साथ है बहुत दिग्गज हैं, पंडित हैं हमारे साथ, जो संस्कृत के बारे में बहुत कुछ हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले हम प्रभात कुमार महापात्र सर, जो आप इतने बड़े पद पर है और आज ये विशेष दिन है हमारे लिए, विश्व संस्कृत दिवस। हम कह सकते हैं भारतीय जो हम हैं आज गर्वबोध कर रहे हैं संस्कृत दिवस मनाते हुए। और भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो संस्कृति है, सभी का मूल स्रोत संस्कृत होता है। थोड़ी आपसे हम जानना चाहेंगे। एक है कि हमें सब लोग माने संपूर्ण भारतवासियों को जोड़ने के लिए एक ही भाषा है, वो संस्कृत भाषा। ठीक, वो सबको जोड़ सकता है। एकदम। कोई भी पूर्व से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण हो, सभियों को जोड़ने के लिए एक ही भाषा है संस्कृत हम भाषा। तो कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम। निश्चित रूप से हम तो पूरा वसुधा, हम ये तो हमें भारत का कहा, आप भी बड़ी बात बोल दिए हैं कि ये समग्र पृथ्वी को जोड़ने के लिए एकदम। संस्कृत भाषा एक ही भाषा है, क्योंकि ये पहले से हमारा बोली चाली भाषा थी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में हम बोलते थे, हमारा भाषा का आदान प्रदान, जो भाव का आदान प्रदान है, वो संस्कृत भाषा में होता था। एकदम। परवर्ती समय में धीरे धीरे वो प्रांतीय भाषा में बदल गया। हाँ, तब अभी हम निश्चित रूप से कहेंगे कि संस्कृत भाषा सबसे श्रेष्ठ भाषा है, वो हमारा संस्कृति है। वो हम संस्कृति को यदि जानना चाहेंगे तो निश्चित रूप से संस्कृत को जानना ही होगा। एकदम सर। और प्रभात जी, और एक बात है कि जो हमारे आज के जो टॉपिक है, भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृति, भारतीय रहन सहन सभी को अगर जानना है, जो आपने ये बात भी आपने छेड़ी है, जिस भारत को जानना है, पूरे विश्व को जानना है, तो फिर सबसे पहले संस्कृत को जानना जरूरी है। क्या बोलेंगे सर इस बारे में, आप भी क्या राय है? मेरा मानना है, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो स्रोत है वो है संस्कृत। ठीक। तो ज्ञान को जानने के लिए जिस भाषा की ज़रूरत है वो है संस्कृत। तो संस्कृत अगर हम जानेंगे तो भारत की ज्ञान परंपरा जो सदियों से एक युग से दूसरे युग तक रूपांतरित होती हुई है, और आज की जो हमारी संस्कृति है, हमारी पुरानी संस्कृति का किसी न किसी रूप से प्रतिफलन है। तो आज के हम संस्कृति के जितने भी विविध रूप हैं, ज्ञान के जितने भी प्रकार हैं, सभी प्रकारों का अगर अध्ययन करना चाहें तो उस रूप से हमें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। संस्कृत को कहा गया है देववाणी। एकदम। और संस्कृत का जो शुरुआत है उसे कहा जाता है कि जो भाषा देव की वाणी है, भगवान के द्वारा बातें हैं, तो उसकी शुरुआती जो पेडागोजिकल अप्रोच थी कि ये सुनी हुई थी, श्रुति कहा जाता था, पुनः स्मृति के रूप से आया। और श्रुति और स्मृति के जरिए यह संस्कृत कहीं के हमारे बीच में आज जिस फॉर्म में है, हम कहीं के आज उससे दूर हो गए हैं। और इस संस्कृत दिवस के अवसर पर हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के जितने स्वरूपों को संस्कृत स्पर्श करती रही है, आज के समय में उसकी क्या उपयोगिता है। मैं समझता हूँ कि आज के इस पैनल डिस्कशन के जरिए हम दर्शकों को बताएंगे कि संस्कृति, जब हम संस्कृत के नाम पर हम अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, तो कहीं न कहीं आज के परिवेश में संस्कृति को मेंटेन करने के लिए, अपनी संस्कृति को समाज उपयोगी बनाने के लिए संस्कृत भाषा की क्या उपयोगिता है, इसकी चर्चा अति आवश्यक है। बहुत जरूरी है ये बात। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत की क्या भूमिका रही है और आज के समय में संस्कृत हमारे लिए कितनी उपयोगी है,
ये जानना अति बहुत आवश्यक जरूरी है। हम सुनेंगे आपसे ये सभी विषय पे ऊपर संस्कृत आज के दौरान, आज के इस आधुनिक मॉडर्न सिचुएशन पे संस्कृत कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे हमारा छूट हो गया संस्कृत, स्कूल के स्तर के बच्चों में कैसे संस्कृत तो फिर से लाया जाए, हम सभी आपसे सुनेंगे। दिवंकर सर, आपसे भी एक ही सवाल, जो भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो गर्व है, ऐतिह्य है, भारतीय जो संस्कृति है, जिसे हम कह सकते हैं, सर ने जो बोला वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम भारत को बहुत ही नेतृत्व देते हैं गर्व के दौरान, तो ये जो एक प्राचीन भाषा है, जो एक देवता का जो भाषा है, जो जिस भाषा सबसे पहले देवताओं ने, मुनि ऋषियों ने द्वारा श्रुति और जो बात संवाद सुनने से जो तैयार हुआ, ওইটা এখন কি পর্যায়ে রয়েছে, এখন সেটা আমরা কিভাবে এটাকে আবার ভারতীয় মূল স্রোতের সাথে আমরা যুক্ত করব? খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। আমি একটা পার্সোনালি বা আমার এটা নিজের একটা আমার ধারণা, যেটা আমরা বলি যে আমরা সংস্কৃতকে ভুলে গেছি বা সংস্কৃতকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি, এই কথাটা পুরোপুরি সত্যি কথা নয়। এটা আমি ভাবি জাস্ট দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড, সংস্কৃত আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। আর এটার কারণ হলো, আমি এটা পার্সোনাল একটা আমার ওপিনিয়ন রাখছি এখানে, কারণ আপনি চিন্তা করে দেখুন আজকের থেকে 3500 বছর রাউন্ড আগের এটা ভাষা, তখন যেটা যুগ ছিল আর এখন যুগের মধ্যে অনেকখানি তফাৎ আছে। তখন আমরা যতটুকু সততার সঙ্গে একনিষ্ঠতার সঙ্গে আমরা জীবন নির্বাহ করতাম, এখন আমরা ঠিক ওরকমভাবে করি না। হ্যাঁ স্যার এটা বললেন যে এটা একটা দেব ভাষা। দেব ভাষা মতলব আমাদের মধ্যে, মানুষের মধ্যে যখন দেবত্ব ভাব ছিল, তখন যেটা মানুষ ভাষা বলতো সেটা হতো সংস্কৃত ভাষা। যখন থেকে মানুষের মধ্যে একটু সেই দেবত্ব স্থান থেকে আমরা একটু নিচে এসে যাচ্ছি আস্তে আস্তে, ঠিক তখনই সংস্কৃত ভাষা আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। তখনই আমাদের স্যার যেটা বলেন প্রান্তীয় ভাষা, ওটার মধ্যে অনেক কিছু অপভ্রংশ, অনেক কিছু ঢুকে যাচ্ছে, ওখানে অনেক ধরনের করাপশন ভাষার মধ্যে এসে যাচ্ছে, তখন বিভিন্ন রকম ভাষাতে এটা পরিণত হচ্ছে। কিন্তু যেটা মূল ভাষা, যেটা পিওরেস্ট ফর্ম অফ অল ল্যাঙ্গুয়েজ, ওটা সংস্কৃত। আর যদি আমরা সংস্কৃতি দেখতে চাই, আমাদের সংস্কারটা আগের মতো করতে চাই, তাহলে আমাদের আর কোনো উপায় নেই, কোনো রাস্তা নেই, আমাদের সংস্কৃত ভাষাকে আমাদের নিজের করে নিতেই হবে। আর স্যার যেটা বলেন আমি সম্পূর্ণ একমত, যে পুরো ভারতবর্ষকে যদি একটা ভাষা জুড়তে পারে তাহলে সেটা সংস্কৃত। কারণ আপনি দেখবেন তামিলনাড়ুতে বা সাউথ ইন্ডিয়ান অনেকগুলো কান্ট্রিতে হিন্দি ভাষাকে ওরা এখন অবধি খুব পুরোপুরিভাবে স্বীকৃতি দেয়নি, কিন্তু যখন সংস্কৃত ভাষার কথা এখানে আসবে ওরা সব থেকে প্রথমে স্বীকৃতি দেবে। কেননা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তামিল তেলুগু ভাষার অনেক বেশি মিল আছে। তো এই ব্যাপারে আমি স্যারের সঙ্গে অনেক একমত। আর আমি ভাবি যদি আমরা আবার সেই সংস্কৃতে ফিরে যেতে পারি, তাহলে ভারতবর্ষের অনেক उत्थान হবে। একদম। আমরা স্যারের কাছ থেকে শুনবো। प्रभात जी सर हमारे साथ है। प्रभात जी, हमारे जो भारतवर्ष है वो तो विभिन्नता का देश है, बहुत से विभिन्नता हमारे देश पे है, हम सभी विभिन्नता के बीच में एक है। वो एक क्या है? वो एक है हम भारतीय, वो एक है हम संस्कृत, वो एक है हमारा एक ही मूल भाषा है। हम, मुझे लगता है ये संस्कृति है हमारा एक भाषा है, जिस भाषा सर्व भाषा के ऊपर है ये भाषा। तो इस संस्कृत भाषा से शुरू होके अब ये भाषा हमारे बीच नहीं रहा, मुझे लगता है लुप्त हो गया, नहीं रहा, वैसे हम इसे नहीं देख पा रहे, नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, कैसे इसे लाया जा सके? आपसे सुनेंगे। ये है भाषा, नहीं है हम नहीं कह सकते हैं, भाषा है। आज भी संस्कृत पाठशाला में भी संस्कृत में भी पढ़ाया जाता है। हमारा परिसर में एकलव्य परिसर जो त्रिपुरा में है, वो भी अगरतला में है, वो भी, वहाँ भी संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हाँ, एवं आज भी हमारे छात्रों ने और अध्यापक लोग ने संस्कृत के माध्यम से वार्तालाप करते हैं। और भी ये है कि सर ने एक बात कहे, अच्छी बात है कि हम यदि शुद्ध बोलेंगे, आप जो बंगाली बोलते हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं, कोई तमिल बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, अलग भाषा हाँ, लेकिन हम शुद्ध बोलेंगे उस भाषा में। यदि कर्नाटक भाषा है, हम शुद्ध यदि उच्चारण करेंगे, शुद्ध बोलेंगे, तो वो संस्कृत हो जाता है। अच्छा, आपको एक जो आप बंगाली भाषा में कहते हैं तले, हाँ, नीचे, तले कहते हैं, हमारा उड़िया में कहते हैं तड़े, और अन्य भाषा में भी ऐसे ही शब्द को, नीचे शब्द को, जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से ही है। ये संस्कृत भाषा का, संस्कृत में ये तल शब्द का है तल शब्द, और तले
माने नीचे कहेंगे तो तले, तब ये निश्चित रूप से हम कहेंगे कि हमारे बोलचाल में भी संस्कृत है। हम उसको माने जैसे ही हमारे अंदर में, हमारे घर में जो चीज़ है ना, उसको हम पहचानते नहीं थे, बाहर का चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पहचान जाते हैं। लेकिन महापात्रा जी के शब्दों को थोड़ा सा मैं अपना एक सेंटेंस जोड़ना चाहूँगा कि आपने मैडम कहा कि संस्कृत की जो आज की जो अवस्था है उससे बहुत आपकी चिंता है। हाँ। थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक है कि कभी वह समय था प्राचीन काल में जिसमें संस्कृत में वेद लिखे गए। हाँ, वेद लिखे गए। और वह वेद की भाषा है और वह वेद हमारे जीवन का एक नियामक हुआ करता था। हमारी परंपरा वैदिक परंपरा रही है और उस परंपरा से हमारा जो परिवार का जो नियंत्रण है, समाज का नियंत्रण है, राष्ट्र का नियंत्रण है, वह एक धम्म था। इट वॉज द इंस्ट्रक्शन ऑफ धम्मा वेयर द वर्ल्ड फैमिली एंड द मैन टू मैन रिलेशन वॉज गाइडेड। एक हमारा एक ऐसा मंत्र था जो हमारी सनातन परंपरा थी। तो सनातन की सारी पूंजी जहाँ पर केंद्रित थी वह संस्कृत भाषा थी। यह हमारे प्राचीन की गौरव गरिमा है। हाँ। लेकिन इस गौरव गरिमा आहिस्ते आहिस्ते जब हम वैदिक पोस्ट वैदिक में आते हैं तो देखा जाता है कि वहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का विकास होता है। पुनः संस्कृत कहीं न कहीं प्रभाव में धीमी पड़ जाती है। जब हम मध्यकाल में आते हैं, जब इस्लामिक इन्वेजन होता है भारत में, हमारे सांस्कृतिक सारी किताबें आपको सुनकर आश्चर्य हुआ कि बख्तियार खिलजी नालंदा में और बहुत सारे बनारस में जितने भी मठ थे, मंदिरों में जितनी संस्कृत की दस्तावेज थी, सबों को उन्होंने नष्ट कर दिया, जला दिया गया। और जब ब्रिटिश काल में आते हैं तो हमारी संस्कृत जो है वह जो हमारी गुरुकुल की जो भाषा हुआ करती थी, जो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच की जो गुरुकुल परंपरा थी, जो प्राचीन काल से कहीं न कहीं मध्यकाल में कम हो गई और जब हम मॉडर्न युग में आते हैं तो उसको ख़त्म कर दिया गया। और यह जो मेकाले का सिस्टम है, उस मेकाले के सिस्टम में संस्कृत की पूरी जो हमारी गुरुकुल परंपरा है समाप्त हो गई। तो हम जब आज़ाद भारत में आते हैं तो पुनः आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत आज़ाद भारत में भी जितने भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में संस्कृत को जिस रूप से रखा गया उस रूप में उसके साथ सही स्थान नहीं दिया गया। हमारी मातृभाषा हर स्टेट को अलग से भाषा के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, हर की एक मातृभाषा, राष्ट्रभाषा के नाम पर हिंदी और अन्य भाषाओं के साथ डिबेट हो गया। हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप से नई राजभाषा बन गई। संस्कृत हमारी जो प्राचीन जो सबों को जोड़ने वाली भाषा थी, कहीं न कहीं इस दौर में पीछे चली गई। तो देखा गया है कि जब हम राष्ट्रीय करिकुलम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर राज्य की अपनी मातृभाषा होती है, तो हम एक राष्ट्रभाषा अपनी मातृभाषा पढ़ते हैं, 3 लैंग्वेज सिस्टम के जरिए अपनी मातृभाषा अंग्रेजी पढ़ते हैं। कहीं न कहीं संस्कृत प्रायोरिटी में नहीं आती है, उसको थर्ड लैंग्वेज के रूप से पढ़ना पड़ता है। लोगों के पास क्या होता है ऑप्शन कि थर्ड लैंग्वेज में, जैसे यहाँ के त्रिपुरा के क्षेत्र में कि जो त्रिपुरा के लोग हैं फर्स्ट लैंग्वेज बांग्ला पढ़ेंगे, दूसरा अंग्रेजी पढ़ेंगे, थर्ड उनके पास हिंदी और संस्कृत है। वो संस्कृत मतलब उनके पास ऑप्शन है, वह प्रायोरिटी नहीं है। तो प्रायोरिटी में हर स्टेट में क्या होता है कि लोग उस प्रायोरिटी के अनुसार संस्कृत कहीं न कहीं थर्ड लैंग्वेज में। तो जहाँ जिस देश में संस्कृत कभी हमारी परंपरा होती थी, हमारे सनातनी पहचान से वह कहीं न कहीं थर्ड चॉइस हो गया है। वही बात मैं सबसे बोल रही थी कि जो चीज़ हमारी पहचान थी, जो गरिमा हमारे लिए गौरवमय था, वो आज इतना पीछे चला गया और दूसरे जो भाषा है उसका आधिपत्य बहुत ज़्यादा हो गया। हम खो गए ये नहीं कहते, अभी भी है। जो लोग संस्कृत को अभी भी बचाए हुए हैं, जैसे कि आप लोग, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट, उन लोगों को कभी कभी, मैं भी संस्कृत का कभी ऐसे मेरी तरह बहुत से स्टूडेंट हैं जिसे लगता है मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मेरा भाषा कहीं अकेला हो गया है, बहुत ही कम हो गए हैं इसका। नहीं, उस रूप से मैं समझता हूँ कि आज की जो पूरी जनरेशन है, हमारी जो भारत की ज्ञान परंपरा जो संस्कृत में लिखी गई है, आज हम फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, कृषि विज्ञान की, सारे विज्ञानों की पढ़ाई हमारे संस्कृत के दस्तावेज में है। चूँकि वह संस्कृत में लिखी हुई है तो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हम कैसे खेती करें, हम प्रकृति और व्यक्ति के बीच में संबंध खराब हो गया है। पूरे पर्यावरण को नियंत्रण की बातें हमारे
संस्कृत के दस्तावेज में पढ़े हुए हैं, तो हम अगर संस्कृत पढ़ेंगे ही नहीं तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे क्या? एक हैप्पी लाइफ की पूरी तस्वीर हमारे सनातन परंपरा में है, लेकिन वेद में है और हमारी संस्कृत में लिखी हुई है, तो वो तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। और हमारे पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन अब संस्कृत नहीं है, तो हमारे भारत ज्ञान से हम कहीं न कहीं उस परंपरा से हम दूर चले गए। और जब हम उस परंपरा से दूर चले गए तो निश्चित रूपेण आज की सबसे बड़ी अहमियत है कि भारतीय ज्ञान परंपरा अगर हमारे जीवन की समस्या को समाधान देगी तो संस्कृत पढ़ना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आज हमारे सामने पर्यावरण की समस्या है, आज हमारे सामने हर आदमी के पास भौतिक सुख है लेकिन शांति नहीं है। शांति की तलाश के लिए हर आदमी परेशान है। आखिर शांति आएगी क्या? क्या भौतिक सुख शांति दे सकती है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इंडियन नॉलेज सिस्टम हमारी परंपरा रही है, हमारा उद्देश्य रहा है कि सनातन परंपरा के जरिए हमारी जो पहचान रही है, हमने दुनिया को बताया कि हम प्रेम और सौहार्द की भाषा थी। हम एक वसुधैव कुटुंबकम के जरिए हम एक होमोजीनियस वर्ल्ड की कल्पना करते थे, एक पूरी दुनिया जहां पर हर आदमी प्रेम से रहे। आज एक ऐसी पूरी दुनिया है जो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड दुनिया है। मैं समझता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः रिवाइव करने की जरूरत है, और रिवाइव तभी हो सकती है जब हम संस्कृत को आज संस्कृत दिवस के अवसर पर पूर्ण मर्यादा दें। ठीक, सत्यदेव जी आप बहुत इतना अच्छी तरह से संस्कृत, एक्चुअली संस्कृत एक भाषा नहीं, एक इमोशन है, हमारा अनुभूति है। संस्कृत हमारा, जैसे कि मुझे नहीं लगता ये कोई भाषा है जिसे लिखाई और पढ़ाई से पूरा किया जा सकता है। ये हमारा एक इमोशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दीपंकर जी आपसे भी हम মানে আপনার থেকেও জানার চেষ্টা করছি যে এই ভাষাটা সত্যি আমাদের সাথে একটা ইমোশনের সাথে জড়িত ছিল, এখনো আছে। একটা সময় ছিল আমরা এটাকে কম্পালসারি হিসেবে পড়ে গেছি ক্লাস 6 এর পর থেকে, তারপর 9 এর পর থেকে এডিশনাল হিসেবে যুক্ত হলো। যদি আপনি পড়তে চান এডিশনাল হিসেবে পড়তে পারেন, কিন্তু 6 to 8 কম্পালসারি ছিল। তারপর দেখা গেছে এটা শুধু 6 আর 7 ক্লাসেই রয়ে গেছে, তার আগেও নেই পরেও নেই। এখন এনইপি 2020-তে অনেক কিছু পরিবর্তন হলো, ঐতিহাসিক একটা পরিবর্তন হলো এনইপি 2020-তে, যেটার মধ্যে মাতৃভাষাকে খুব জোর দেওয়া হয়েছে, যেটার মধ্যে সংস্কৃত ভাষাকে জোর দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টা আমরা আপনার থেকে একটু শুনি। প্রথম প্রশ্নের আমি একটু চেষ্টা করবো উত্তর দেওয়ার। আপনি যেটা বললেন খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন, কি ইমোশনের সঙ্গে কীভাবে কানেক্টেড। দেখুন, আপনি যখনই একটা সংস্কৃতে মন্ত্র উচ্চারণ শুনবেন বা আপনি মন্ত্র উচ্চারণ করবেন সঠিকভাবে সংস্কৃতে, আপনার একটা আনন্দ অনুভূতি হবে। আর আপনি যদি শুনেন সংস্কৃতে কোনো মন্ত্র উচ্চারণ হচ্ছে বা সংস্কৃতের গীতা পাঠ বা যে কোনো ধরনের সংস্কৃতের কথা আপনি শুনতে পারছেন, আপনার মনে হবে যেন আপনার আত্মাটা পিউরিফাই হয়ে গেল, একটা পিউরিফিকেশন, একটা সেন্সেশন আসবে। তো এই যে এই ইমোশনটা শুধুমাত্র আমার মনে হয় সংস্কৃত ভাষায় দিতে পারে। আর পৃথিবীতে অন্য কোনো ভাষার এই ক্ষমতা নেই যেটা আমাদের आत्मा मन देह एक प्यूरिफिकेशन एक सेंस आनते पारे। प्रभात जी इस बारे में आप थोड़ी बोलिए। निश्चित रूप से मैं कहूँगा सर के साथ मैं और जोड़ता हूँ उसमें, और पोदार सर भी जो कहे सर का तो भारतीय भारतीय ज्ञान परंपरा में जो हम अभी जो चल रहा है विज्ञान के युग में, विज्ञान के साथ संस्कृत को जोड़ा है। एवं हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो थी, जैसे ही सर ने कह रहे थे कि हमारे जो न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन का जो नियम है, कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। लेकिन ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में है। 11वीं शताब्दी में भास्कराचार्य ने कहे हैं सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में, उसको कहे हैं, और उसका भी इतने संस्कृत में है। कोई संस्कृत में इतना उस समय में समझते थे, लेकिन जो विद्वान होते थे वो समझते थे। जो हमारे जो प्रांतीय भाषा आ गया तब वो समझ नहीं पाए उसका क्या अर्थ है। हाँ, कोई भी वस्तु आपको ऊपर को फेंकेंगे तो वो अपने केंद्र के ओर खींचता है, पृथ्वी अपने केंद्र के ओर खींचता है। लेकिन वो हो गए प्राप्त कर लिए नोबेल पुरस्कार, लेकिन हमारे ये नहीं पाए हैं। लेकिन ये है कि निश्चित रूप से सब कुछ हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में है, वो रहेगा है मध्य, और उसको भी आगे निश्चित रूप से हम बढ़ाएंगे। और ये बढ़ा रहे हैं हमारे संस्कृत जगत के, और जो विद्वान व्यक्तिगण हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये भी है कि आपको देखिए, कोई भी आप एक नाम जो देते हैं संस्कृत में, जो नामकरण होता है, जैसे संस्कृत में नहीं, हम जो नामकरण करते हैं उसका अर्थ होता है। मेरे नाम प्रभात है, उसका ही एक अर्थ है, समय में नामकरण और उसके हिसाब से हम ऐसे ही एक नामकरण उत्सव हम करते थे, और हमारे संस्कृति में है। वो संस्कृत में भी है। वो क्यों?
इसलिए करते थे कि नामकरण के साथ उसका भविष्य उन्नति होता है, भविष्य में उन्नति होता है, इसीलिए उत्तम ऐसे ही नामकरण देना है, वो आगे उन्नति करे। वो कहते हैं ना उस दिन ये भगवान नाम के साथ जुड़ा जाता है उसका भाग्य भी। हाँ, वो भी उसी के साथ जुड़ता है, आगे बढ़ता है जी। दीपंकर जी ने एक बहुत अच्छी बातें कही कि संस्कृत की भाषा के जरिए जो हम किसी भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं इसका एक प्रभाव होता है। इसके पीछे मैं इनकी बातों को थोड़ा सा मैं और बल देना चाहूँगा। संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है, अगर संस्कृत भाषा को विश्व के किसी भाषा से तुलना करें तो संस्कृत की अपनी एक अहमियत है। 3-4 बिंदुओं पर अगर हर लोग इसको जानें तो हर लोग संस्कृत पढ़ना शुरू कर देंगे। नंबर 1, संस्कृत के अगर आप कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स को देखें, एक मनुष्य के पूरे जो हमारे ऑर्गेन्स हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे भीतर का जो नर्व सिस्टम है, आप किसी शब्द के संस्कृत के किसी शब्द का सही उच्चारण करेंगे, एक श्लोक आप पढ़ लें तो आपके जो 36 कॉन्सोनेंट और 16 वॉवेल्स के उच्चारण से आपके मन और मस्तिष्क पूरे शरीर के सारे नर्व जो हैं झंकृत हो जाएंगे। एकदम सही बात। फुल एक्सरसाइज। बहुत बढ़िया। नंबर 1। नंबर 2, जब हम किसी शब्दों का उच्चारण करते हैं तो संस्कृत के सही उच्चारण से जो हमारे साउंड में वाइब्रेशन होता है, यह वाइब्रेशन अपने आप में पॉजिटिव होता है। यस, इट इज अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। और पॉजिटिव वाइब्रेशन से न केवल आपके शरीर की शुद्धिकरण होती है, आपका शरीर का एक्सरसाइज होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि संस्कृत के उच्चारण से भीतर के बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। ठीक। अमरकंटक के एक हमारे संस्कृत के प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक किया है अगर आप 1 मिनट संस्कृत पढ़ेंगे तो आपके कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी। अद्भुत है संस्कृत का उच्चारण। और संस्कृत के उच्चारण जब वैदिक पाठ अगर आप बनारस चले जाएं तो वहाँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। वैदिक उच्चारण मंत्रों के उच्चारण से और हवन की क्रिया से न केवल एक सांस्कृतिक विरासत को हम याद करते हैं बल्कि पूरे वातावरण को हम शुद्धिकरण करते हैं। वातावरण की नकारात्मकता वैदिक मंत्रों के जरिए संस्कृत के उच्चारण से शुद्ध हो जाती है एकदम। और हमारे बीच में जितने जो वातावरण में बहुत तरह के जो अशुद्ध चीज़ें हैं, अगर आप संस्कृत बोलें, सकारात्मक वाइब्रेशन करें, तो मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वह कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहकर दोनों में प्रेम होगा। एकदम। तो आप संस्कृत में बात कीजिए, मैं नहीं समझता हूं कि कभी एक दूसरे के बीच में हम लोग झगड़ा करेंगे। संस्कृत तो प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा है। हाँ प्रभात जी, ये सेम ही यही बात से मैं भी आपसे एक ही सवाल करना चाहूँगी कि ये जो संस्कृत जो हमारी भाषा है, मातृभाषा है, हमारी जो प्राचीन भाषा है, अभी ये भाषा हम तो किताबों में तो पढ़ते हैं, इसके साथ सर ने जो मुद्दा उठाया, सर ने जो बात बोला, जब मंत्रों के द्वारा हमारे घर में भी पूजा पाठ होते हैं, सभी के घर में होते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ होता है, तभी कि हम मंत्र का उच्चारण सुनते हैं, समझ नहीं पाते। बहुत से बच्चे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे, मंत्र हाँ जल्दी जल्दी बोल दो, हम समझ नहीं आ रहा है, शादी भी जल्दी जल्दी कर दो, क्या मंत्र हो रहा है कुछ समझ नहीं हो रहा है, चल हो चले। इस सब में सबको समझ आना चाहिए, इस सभी में बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए। भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय परंपरा को, संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए कैसे किया जाए स्टेप? निश्चित रूप से ऐसे ही हो सकता है कि ये तो सर ने कहे हैं, पोदार सर ने, जो संस्कृत को मैंने श्लोक कोई पढ़ेंगे तो उसका वाइब्रेशन में परिवेश शुद्ध होता है। हाँ, परिवेश शुद्ध हो जाता है। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ कि एक है हमारे जो पूजा पद्धति में सर्वे ग्रहा एकादशस्था भवन्तु, माने ये देखिए कि ज्योतिष शास्त्र के साथ संस्कृत का किस तरह संबंध है। वो वहाँ सर्वे ग्रहा एकादशस्था भवन्तु, अर्थात एकादश में ये है ज्योतिष शास्त्र में, एकादश को जो ग्रह जाएंगे वो शुभ होते हैं, कुछ भी हो, अशुभ हो शुभ हो सभी शुभ होते हैं। तब ये निश्चित रूप से हम ये इसमें कहेंगे कि इसमें ये भी हमको हमारे मन में संतुष्टि होता है कि सबका आज मेरे पंडित जी उच्चारण कर लिए कि ये एकादश में सभी ग्रह रहें तो मेरा आज शुभ हो जाएगा। ये निश्चित रूप से हमारा अंतःकरण में एक शांति मिलता है हम लोगों को। वो शांति के साथ हम संस्कृत को बहुत एकदम प्यार करते हैं, एकदम उसके साथ हम जुड़ने के लिए कोशिश करते हैं और उसको कहते हैं कि आज मेरा मन शांति हो गया, आज कुछ मैं पंडित जी ने अच्छा पूजा की है। हाँ, पूजा किया अर्थात श्लोक पढ़े हैं, संस्कृत में कुछ बोले हैं। आज भी मैं आपको एक सर के साथ बात के साथ एक जोड़ता हूँ बात
जे देखिए कि आज अभी इस समय में एक धारा चल रहा है जे हर घर में संस्कृत को प्रवेश कराने के लिए। एकदम आप आइए 10 दिन में हमारे नहीं, हमारे यही त्रिपुरा में भी छात्र बहुत प्रशिक्षित छात्र हैं। 10 दिन में आपको संस्कृत सिखा देंगे, आप संस्कृत बोलने लगेंगे। अच्छा। आप संस्कृत बेस्ड नहीं है, आप संस्कृत पहले नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अच्छा तब भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल में क्या हो रहा है ना, कोई आप घर में संस्कृत पढ़ाने के लिए बच्चों को प्रेरित क्यों नहीं करते हैं कि हम जो पाश्चात्य भाषा के ओर जा रहे हैं ना, पाश्चात्य भाषा में थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम वो किसी का माँ कहती है कि मैं तो इंग्लिश 2 शब्द जानता हूँ तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन संस्कृत तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन आप कोशिश करिए, देखिए माता पिता यदि कोशिश करेंगे निश्चित रूप से संस्कृत को आगे बढ़ा सकते हैं। और संस्कृत में एकदम हम संस्कृत जानेंगे तो निश्चित रूप से हमारा परिवेश और पारिपार्श्विक अवस्था एकदम शुद्ध रहेगा। मैडम, मैं तो व्यवहारिक बातें करता हूँ, संस्कृत के बारे में मैं अपने जीवन और अपने मैं यूनिवर्सिटी में भी मैं प्रयोग किया हूँ। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, उसकी अगर रिचनेस को आपको देखें, संस्कृत के एक शब्द से आप जितना अधिक शब्द बना सकते हैं, विश्व के किसी में इस तरह की विलक्षण अप्रोच नहीं है। अच्छा हाँ, एक शब्द से 1000 शब्द बनाए जा सकते हैं। ग्रामर के रूप से इतने स्ट्रिक्ट हैं कि यह संस्कृत जो है कंप्यूटर उसकी भाषा, उसके एल्गोरिथम जो है वह संस्कृत से जितना कंप्यूटर उसको कैच करता है वह दूसरा भाषा नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि आने वाले समय अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई भी भाषा अगर सबसे सूटेबल होगी तो वह संस्कृत होगी। ठीक। संस्कृत पढ़ने वाले या संस्कृत जो भी, मैं आने वाले पीढ़ियों को कहना चाहूँगा कि संस्कृत के प्रति जो एक डर है वह डर किसी बात की नहीं। डर इसलिए कि संस्कृत इज ए लैंग्वेज ऑफ क्लैरिटी। उसके जैसे कि हम मैडम बोलते हैं, मैडम को शुरुआत से पढ़ लें MADAM, अब पीछे से कर लीजिए तो मैडम ही होगा ना यह। लेकिन मैडम का मैडम ही एक ही अर्थ है, लेकिन संस्कृत के साथ ऐसा नहीं है, यह केवल अंग्रेजी में ऐसा होता है। अच्छा हाँ, आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट अगर आप करेंगे तो संस्कृत कहीं न कहीं उसका एक अलग अर्थ देता है। ये हमारी जो विलक्षण प्रतिभा है वह संस्कृत को आपको समझना पड़ेगा। हमारी लैंग्वेज, हमारे व्याकरण और उसकी जो सरलीकरण है वो और भाषा में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर MBB यूनिवर्सिटी ने, जहाँ पर संस्कृत कोई डिपार्टमेंट नहीं है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली के मदद से मैंने वहाँ पर 3 महीने का एक संस्कृत स्पोकन कोर्स चलाया। हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे कम पढ़े, लेकिन जो लोग संस्कृत कभी पढ़े नहीं थे उन लोगों ने 3 महीने में संस्कृत न केवल सीखा बल्कि उन्होंने पूरे कल्चरल प्रोग्राम को, नाटक, कविता सब संस्कृत में किए। एक्चुअली संस्कृत ऐसा भाषा है, ऐसा हमारे साथ इतना बड़ा है, इतना विशाल है। हम इस छोटे से कार्यक्रम पे कैसे शुरू करें, कैसे ख़त्म करें, मुझे ही मालूम नहीं, पर हम जस्ट थोड़ा चेष्टा प्रयत्न कर रहे हैं। दीपंकर स्যার से भी थोड़ी हम অনুষ্ঠানকে একদমই শেষের দিকে চলে এসেছি। আপনি যদি বলেন যে শিশুদেরকে বা বাচ্চাদেরকে সংস্কৃতের প্রতি যদি আমরা একটু আগ্রহী করে তোলার জন্য ইনিশিয়ালি কি করা যায়, ছোট্ট করে একটু শুনবো আমাদের অনুষ্ঠান একদম শেষের দিকে। এটা খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আপনি করেছেন, সেটা আমার নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতে পারি। আমি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত আছি স্কুলে। আমাদের স্কুলে ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 12 পর্যন্ত বাচ্চারা পড়াশোনা করছে। এখন বালবাটিকা শুরু হয়ে গেছে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে, যেখানে ক্লাস KG 1 থেকে বাচ্চারা পড়ছে, প্রি স্কুলিং, যেটা NEP 2020-র পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। একদম। তো এখানে আমার মনে হয় বাচ্চাদের সংস্কৃতির প্রতি মুখী করার জন্য বা সংস্কৃতমুখী করার জন্য যেটা সবথেকে প্রয়োজন, সংস্কৃতের সরলীকরণ। আর এটা পসিবল হবে যদি আমাদের সংস্কৃতের বিদ্বানরা সবাই একসঙ্গে বসে NCERT-রা বসে এমন বই ওনারা রচনা করেন যেখানে পঞ্চতন্ত্র বা জাতকের কথা, গল্পের বইগুলো, উপনিষদের কথা, যেখানে ছোট ছোট প্যারাবলস আছে, উপদেশমূলক গল্প আছে, খুব ইন্টারেস্টিং গল্প আছে, সুভাষিতা নিয়ে আছে আমাদের। হ্যাঁ, তো ওই গল্পগুলোকে একটা মানে কমিক্সের আকার দিয়ে, একটা ছবি দিয়ে ওটাকে যদি সংস্কৃতে খুব সরলীকরণ করে ইন্টারেস্টিং গল্প বানায়, তাহলে এটা দুটো উদ্দেশ্য সফল হবে। একটা হলো ওরা সংস্কৃত শিখবে, সংস্কৃতকে ভালোবাসবে, ওটার প্রতি একটা অনীহা বা ভয় ওটা চলে যাবে। আর দ্বিতীয়ত এই গ্রন্থগুলোর যে একটা উপদেশ লুকিয়ে আছে, একটা যে মহান উপদেশ যেটা আমাদের লাইফ, চাণক্য শ্লোক আমরা পেয়ে থাকি, অনেক আছে, এটার অগুন্তি, মানে এটা বলে শেষ করা যাবে না।
তো এই যে এই কাহিনীগুলো শুনলে ওদের জীবন, ওদের যেটা মোরালিটি, ওদের ক্যারেক্টার, চরিত্র গঠনে অনেক সহায়ক হবে, এটা আমি মনে একদম করি। একদম অসংখ্য ধন্যবাদ दीपंकर सर। আমরা চাইবো এই ধরনের कार्यक्रम যেন और आगे भी हम कर सके। और सर प्रभात जी, जाते हुए हमें दो शब्द कहिए हमारे संस्कृत के उत्थान के लिए, संस्कृत के पुनर्जीवन के लिए, सभी लोगों के लिए दो शब्द। आज तो मैं एक आंकड़ा बताता हूँ, 6000 घर है जो संस्कृत घर है भारतवर्ष में, और एक गांव, 2 गांव है, एक कर्नाटक में मत्तूर है और दूसरा है राजगढ़ है मध्य प्रदेश में, वो संस्कृत में ही बोलते हैं। अच्छा। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि पूरा भारतवर्ष में सभी परिवार संस्कृत में वार्तालाप करे, भाषण करे एवं संस्कृतमय जगत हो जाए, और एक दिन निश्चित रूप से भारतवर्ष एक विश्व गुरु बनेगा। किसके लिए ना, ये वसुधैव कुटुंबकम, हमारा वसुधा कुटुंब जैसा है, हम एक कुटुंब में भारतवर्ष मुख्य स्थान ग्रहण करेगा संस्कृत के माध्यम से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई सर, आप सभी ने इतने मूल्यवान समय हम लोगों को दिया। और दर्शक बंधु, आप सभी को तो हम बहुत बहुत बधाई कहेंगे, आप सभी ने इतना समय से हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए फिर से हम संस्कृत को आगे ले जाने के लिए संकल्प करें, वो संकल्प है हमारे घर से। चलिए इस संस्कृत भाषा को पहले प्रेम करें, इसे जानें, इसे समझें, और हमारे घर से ही थोड़ी बहुत शुरू करें, क्योंकि ये पूरा विश्व है वसुधैव कुटुंबकम, जिसे हम कहते हैं वन नेशन, वन अर्थ, वन फैमिली। सब अच्छे रहे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। এই অনুষ্ঠানটি নিবেদন করলেন সেন্ট্রাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি।